Hello, everyone. Welcome to the class. And today we are going to discuss to be as the main verb. Okay, so the first thing that I would like to discuss is that to be is a very important foundation auxiliary verb. एक हेल्पिंग वर्ब की तरह वो यूज़ होता है, लेकिन वो एक मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, जिसमें लेकिन वो बहुत यूनिक तरह से यूज़ होता है बिकॉज इट डजेंट एज अ मेन वर्ब बी का यूज़ एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए, एक्शन दिखाने के लिए यूज़ नहीं होता है. मीनिंग है बी का टू एग्जिस्ट. ओके, इट मीन्स टू एग्जिस्ट मतलब किसी चीज़ का, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, उसको दिखाने के लिए बी का यूज़ होता है. और अगर किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, तो डेफिनेटली उसका नाम है, आइडेंटिटी, प्रोफेशन, क्वालिटीज़, उसकी लोकेशन जहाँ वो एग्जिस्ट करता है, उसकी फीलिंग्स, स्टेट एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी बी से हमको पता चलेंगी. सो फर्स्ट लुकिंग एट द फॉर्म्स ऑफ बी, and these are, I'm sure you are aware of. In the present tense we use is, mr, is and am are singular, and are is used with plural subjects. Was is in the past used with singular subjects and were with plural subjects, and in future we use will be, shall be. And we have two participles also, being and been, but I'll be talking about them later. Okay, so the first thing that I told you is कि be use होता है to talk about the existence of something, and something is a noun. So that can be a person, place or thing or an idea. So जब हम उसकी बात करेंगे, किसी की बात करेंगे, तो definitely we'll talk about that person's identity. And क्योंकि वो noun है तो वो subject भी है. So we are going to talk about the identity, which means we are going to talk about the name, the profession, nationality, and a quality also. Okay, so you can see on the screen, he is Ramesh, and we are talking of the name. And इसी के साथ आप ये पैटर्न, वर्ब पैटर्न भी देख सकते हैं. और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अब आपको अच्छे से पता है कि दिस इज द फर्स्ट वर्ब पैटर्न जो हमने सीखा है. Ramesh is a doctor. Okay, so form of be that has been used is, and ये यहाँ हम उसके प्रोफेशन की बात कर रहे हैं. Then Ramesh is an Indian. Okay, so यहाँ पे भी is का यूज़ कर रहे हैं, और ये हम नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, वो भारतीय है, और वो है एक एडजेक्टिव. तो आप ये देख रहे हैं, इस पे थोड़ी सी बात हमने पिछली क्लास में की थी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जब चेंज होता है थोड़ा सा, तो ऑब्जेक्ट which is a noun generally, or an adjective noun combination, or a noun phrase, तो उसकी जगह आप adjective भी यूज़ करते हैं. जब आप qualities की बात करते हैं तो आप उनको अकेला भी यूज़ कर सकते हैं. तो तब जो पैटर्न बनता है वो बनता है subject, verb and adjective. And similarly here also, that we are talking of, that he belongs to Bengal. Okay, now we are talking of qualities, state, and feelings of subjects. So, whenever we are going to talk of subjects, whenever I'm going to use the word subjects, you must remember कि we are talking of nouns, जिनके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है. लेकिन इन सब सेंटेंसेस में जो यहाँ हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्लास में, उसमें आप ये देखते जाएं कि इनमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है. We are just describing a person. Who is he? How is he? What is this? इस तरीके के सवालों के जवाब इन सब सेंटेंसेस में दिए जा रहे हैं. ओके, सो ही इज इंटेलिजेंट. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्वालिटी, उसके गुण की बात हो रही है, एंड मोर ओवर उसी वजह से पैटर्न बनता है सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव. ही इज सिक. सो यहाँ पे हाउ इज ही राइट नाउ? ही इज नॉट वेल, ही इज सिक. Radha is wise. Again, we see that this is an adjective. तो यहाँ पैटर्न तीनों में it is not object but it is subject complement, या आप उसको adjective बुला सकते हैं. And some similar sentences. I am disappointed. The movie is good. We are talking of some states and qualities. Yes. So now the third is that we talk about the location and place of a subject, and there also
be or some form of be is used. Okay, so Nina is at the college, Rohan is in the seminar hall. तो आपको ये पता चल रहा है कि सब्जेक्ट नीना कहाँ है या रोहन कहाँ है, या फिर अगर किसी चीज़ की बात कर लें तो बुक इज ऑन द टेबल. All right. Now there is another thing that another place where be is used, and it is used with it and there. और it and there की हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये दोनों use होते हैं. They are pronouns and they are used as dummy subjects. Okay, so when we are not sure of what we are talking of, sometimes we are introducing the subject with it, एंड समटाइम्स व्हेन वी आर यूजिंग देयर तो हम सब्जेक्ट के लोकेशन की बात कर रहे होते हैं. सो विद इट जब हम इसको यूज करते हैं तो वहाँ ज़्यादातर एडजेक्टिव्स यूज होते हैं. एडजेक्टिव्स एंडिंग लेते हैं सेंटेंसेस, और देयर के साथ वो जनरली नाउन एंडिंग्स लेते हैं. लेकिन ये पहला ही सेंटेंस आप अगर कंपेयर करेंगे तो यूल सी कि वी आर एंडिंग द सेंटेंस विद अ नाउन. ओके, सो लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें. इट इज़ अ मैंगो ट्री एंड देर इज़ अ मैंगो ट्री इन द गार्डन. देर इज़ अ डिफरेंस इन दीज टू सेंटेंसेस. जहाँ हम देर इज़ अ मैंगो ट्री इन द गार्डन की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ द लोकेशन ऑफ द मैंगो ट्री. और इट इज़ अ मैंगो ट्री में हम ट्री के हो सकता है एकदम सामने खड़े हैं एंड समबडी इज आस्किंग व्हाट ट्री इज इट. ओके, ये कौन सा पेड़ है, तब आप उसको देख के कह रहे हैं कि इट इज़ अ मैंगो ट्री. ये डिफरेंस है इन दोनों में. और ये देर इज़ अ मैंगो ट्री इन द गार्डन से ऑफ आवर हाउस, तो वहाँ आप सामने नहीं खड़े हैं. यू आर जस्ट रेफरिंग टू अ ट्री विच इज़ देयर. उसकी आप सिर्फ लोकेशन बता रहे हैं. एंड ये कुछ और सेंटेंसेस जिनमें आप ये देख पा रहे हैं कि एज आई टोल्ड यू इट के साथ हम जनरली एडजेक्टिव्स यूज करते हैं. तो इट इज़ फॉगी आउटसाइड एंड देर इज़ फॉग. ओके, सो देर इज़ फॉगी सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड फॉग इज़ अ नाउन, फॉगी इज़ एन एडजेक्टिव. इट इज़ डेंजरस. ओके, किसी चीज़ की, किसी एक्ट की, किसी स्पोर्ट की हो सकता है, या किसी चीज़ की बात हो रही है तो इट इज़ डेंजरस. एंड देर इज़ डेंजर in it. Okay, there is danger in this sport. It is a complex problem. तो अब आप इसको ध्यान से देखें. Complex problem you should come to know by now. Complex is an adjective and problem is a noun. So this is an adjective noun combination. And there is a supermarket near our house. Again, there is a description here of location. Okay, we are talking of the location of the supermarket. और location क्या है, वो मेरे घर के पास है. इट इज़ पॉसिबल. ओके, वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग. ये इनकम्प्लीट है बिकॉज इसके आगे एक क्लॉज होना है, बट सिंस वी हैव आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड यू टू क्लॉजेस, इसलिए मैंने ये आधे आधे ही जितना ज़रूरत था उतना यहाँ लिखा है. इफ़ यू ट्राई टू कंप्लीट इट, इट इज़ पॉसिबल फॉर हर टू विन, ऐसा कुछ सेंटेंस हो सकता है. तो इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल एडजेक्टिव है, एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट शी विन्स. ओके, सो what you have to remember is that it के साथ और there के साथ भी हम be के forms use करते हैं, और generally it के साथ हम adjectives use करते हैं और there के साथ हम nouns use करते हैं. और it के साथ जब हम be के forms और be के forms use करते हैं तो उसमें हम generally time, date, weather, days के बारे में भी बात करते हैं. Like it is 2 o'clock, it is Monday, it is the 22nd, it is cold outside, etc. Okay, now another form of be, which is being and simply using be. Okay, so इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें ये भी हम यूज करते हैं विद बी, एंड आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो पैटर्न बन रहा है, इट इज ही इज बीइंग स्टूपिड. ओके, एक तो सिंपल है ही इज स्टूपिड. ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप एक परमानेंट कैरेक्टर जजमेंट की तरह या अपना ओपिनियन किसी के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो ही इज स्टूपिड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दिस इज सिंपल सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडजेक्टिव. ओके, सो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. या फिर आई एम प्रैक्टिकल, सो यहाँ पे भी सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव का वर्ब पैटर्न बनता है. लेकिन व्हेन वी लुक एट दिस सेंटेंस, ही इज बीइंग स्टूपिड, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न जो बनता है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, बीइंग एंड एडजेक्टिव.
ओके और यहाँ एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन भी यूज हो सकता है, लेकिन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस एंड यू शुड नो दैट ही इज बीइंग स्टूपिड का मतलब है कि अदरवाइज वो फुलिश नहीं है या अनइंटेलिजेंट नहीं है, एट द मोमेंट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वो स्टूपिडली एक्ट कर रहा है, और अदरवाइज अगर आप उसको कह रहे हैं ही इज स्टूपिड, देन इट्स अ परमानेंट जजमेंट यू हैव पास्ड ऑन समबडी। या फिर आई एम प्रैक्टिकल मतलब मैं हमेशा प्रैक्टिकली चीजें करता हूं या करती हूं, इट इज ऑलवेज, लेकिन आई एम बीइंग प्रैक्टिकल जब आप कह रहे हैं तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में अपने एक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, and now lastly what we are going to discuss is the different types of sentences that can be made using forms of be। और ये एक चीज आपको ग्रामर में हर जगह अब याद रखनी है कि हम सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस ही नहीं बनाते हैं। अभी ज्यादातर जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसमें वो सारे असर्टिव या उसको इजी करना है तो पॉजिटिव सेंटेंसेस ही हमने बना के या हमने देखे, लेकिन ये 4 तरीके के सेंटेंसेस जनरली सब जगह ग्रामर में बनेंगे। जहां भी आप टेंसेस यूज करोगे, मॉडल्स यूज करोगे, तो आप हर जगह ये देखोगे कि ये 4 तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। और डेफिनेटली जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे या क्वेश्चंस तो थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आएगा, स्पेशली क्वेश्चंस में और नेगेटिव क्वेश्चंस में। सो आप इनको एक बार ध्यान से देखिए। ये पहला सेट तो आपको बहुत अच्छे से पता है, रोहन इज अ डॉक्टर। ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, नाउन वर्ब नाउन का कॉम्बिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। जब हमने बी के साथ एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो इट इज़ वेरी इजी, आप सिर्फ एक नॉट इज के बाद लगाते हैं, रोहन इज नॉट अ डॉक्टर। नाउ कम्स द थर्ड विच इज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप ये पैटर्न बदलता हुआ देखेंगे और ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस जब भी बनेंगे और स्पेशली हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, तो फिर वो क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब्स से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो पैटर्न जो है वो चेंज हो गया, वो हो गया है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इज रोहन अ डॉक्टर? ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। या फिर आप बस इतना याद रख लीजिए कि ये जो फर्स्ट 2 थे रोहन इज, इसको आपने रिवर्स किया है। सो इज से क्वेश्चन स्टार्ट होगा एंड देन द सब्जेक्ट विल फॉलो, एंड देन सिमिलरली एक नेगेटिव क्वेश्चन, इज रोहन नॉट अ डॉक्टर? तो बस आपको एक नॉट लगाना है। अब इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं एंड देन इट विल बी इजंट, इज नॉट इकट्ठा हो जाएगा, इजंट रोहन अ डॉक्टर। ओके, सो सिमिलरली ये कुछ और सेंटेंसेस हैं। ही वॉज सिक, वॉज पास्ट फॉर्म है बी का, ही वॉज नॉट सिक, वॉज ही सिक। ओके, सो जस्ट रिवर्सल, फर्स्ट पोजिशन यहाँ पे वॉज ने ले ली और ही उसके बाद आ गया, एंड देन वॉज ही नॉट सिक। ओके, और शॉर्ट में वॉजंट ही सिक। सिमिलरली फ्यूचर में ही विल बी। ओके, सो दिस इज द फ्यूचर फॉर्म ऑफ बी, ही विल बी देयर एट द पार्टी। ओके, तो उसकी प्रेजेंस की या एब्सेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ हम असर्ट कर रहे हैं कि वो होगा। ओके, ही विल बी एट द पार्टी, ही विल बी देयर एट द पार्टी। यहाँ हम कह रहे हैं वो नहीं होगा, ही विल नॉट बी देयर, ऐसा उसने बताया। एंड विल ही बी देयर, तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्या वो होगा। आप इन सब सेंटेंसेस में क्लियरली देख लीजिए कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म होते हुए नहीं दिखाया है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर learning the use of be as a main verb. Okay, we are just learning first of all the use of be as a main verb. तो जब be का use as main verb होता है तो वहाँ हम सिर्फ existence की बात करते हैं of nouns या subjects, और existence के लिए we only describe, we talk of their identity, who are they, how are they, where are they. Okay, उसी की बात होती है, कोई action perform होता हुआ वहाँ नहीं दिखाया जाता है। एंड सिमिलरली विल ही बी देयर एट द पार्टी में आप ये देख रहे हैं कि सेंटेंस अब विल से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ही, दैट इज द सब्जेक्ट और प्रोनाउन कम्स, एंड देन सिमिलरली विल ही नॉट बी देयर, वोंट। ओके, सो विल नॉट को शॉर्ट करके वोंट यहाँ बनाया है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू ऑन ऑन योर ओन इज कि आप ये जितने सब टाइप के हमने सेंटेंसेस देखे, बी के डिफरेंट यूजेस देखे, उनको आप सेंटेंसेस में प्रैक्टिस कीजिए। एंड आई विल डू वन थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल पुट 2
websites, links of two websites, and there you can practice some tests which will be based on the use of be.